Assalamualaikum and welcome back to Ginger Sports YouTube channel. आप देख रहे हैं Ginger Sports. Once again, we have a very special guest with us today, Mr. Asjad, joining us from Cricket for Us. Thank you very much again for joining us. और आज हम उनसे इंडियन क्रिकेट के स्टूडियो में बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले कैसे हैं सर आप? Assalamualaikum. Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm good. Yeah, thank you for having me. Love your videos. Really appreciate being on here. और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके. इंडियन क्रिकेट के बारे में यार आप शुरू करो. मैं तो 2-3 बातें हैं मैंने जो करनी है अभी. Right. Yeah. Starting up with, I think that's the main question right now. IPL 2021's auction or strange picks, nahi, you can say that overpriced picks like Chris Morris, Glenn Maxwell. सबसे पहले तो आप बताएं Chris Morris को 16.25 करोड़ में लेना कितना justified है? Justified, I don't know. लेकिन यार आप देखो last time it was 10 crores. This time around 16.25. That's the highest ever in the IPL from what I understand. No, ठीक है, that आप was सोचे. Yuvraj Singh 17 crore IPL highest. Oh, okay. Thank you, Sohaib. So this is a huge money amount. ठीक है, this is a lot of money. And now if we look at Chris Morris, yeah, he has to perform with the bat and the ball. क्योंकि he has a huge price tag on him now. अब आप अगर notice करें, I thought it's a bit too much, लेकिन it's justified. The reason why it's justified because Chris Morris and someone like I think ये राजस्थान के लिए गए हैं, right? He's going to Rajasthan. तो जोफ्रा आर्चर and Chris Morris bowling at the death. मतलब 8 per over से ज्यादा तो नहीं जाने वाले ना ये in the death overs. So that's a good tactic. In terms of the hitting, whenever he comes in, he has the ability कि जाके आराम से घुमा सकता है और जब मारता है तो it stays hit. That's the thing. Now the role that they were trying to fill was number one, Tom Curran का role जो उसने half of the season पिछले साल खेला था. So you need a death bowler. Tom Curran उन्होंने देख लिया, didn't work. Chris Morris is a tried and tested player. उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, पिछले साल पे सिर्फ बेस नहीं कर सकते. We base it on his entire career and he is a death ball specialist in T20s. So on that basis, he gets 8 crores. But on the rest of it, I think 4 crore extra would have been fine. But it's huge. It's a huge amount. And I think Rajasthan used all their chips in one guy. And if he needs to perform in this IPL. मोइन अली के पे भी आज मैं मैं मोइन अली की भी बात कर लूं. 7 point something crore for Moeen Ali, right? That is almost $1 million for Moeen Ali. That was definitely an audition. वो जो एंड में किया है ना सेकंड टेस्ट के, ठीक है, वो जो 5 छक्के मारे 3 on the trot to अक्षर पटेल और फिर 8 विकेटें मिली. I know different formats, but at the same time you have to consider the fact that exactly it was in India. Thank you, Sohaib. But हाँ, that's been a shock. और आपने मैक्सवेल का नाम लिया. मैक्सवेल यार पंजाब ने जब छोड़ा था उन्होंने सोचा था कि मैक्सवेल इतने में बिकेगा. इतने ज्यादा 14.25 crore. That's a lot of money. And on that point, I just want to mention, आपने नोटिस किया होगा CSK और पंजाब किंग, sorry not पंजाब किंग, RCB, they were going for him. वो जाते जा रहे थे जब तक प्राइस इतनी ऊंची नहीं हुई किसी इसने कहा यार और नहीं करते. तो what I saw, yeah, exactly. What I saw in CSK's tactics was they wanted an all-rounder जो ऑफ स्पिन कराता हो और बिग हिटिंग करता हो. 2 हैं, मैक्सवेल है और मोइन अली है. ठीक है, मैक्सवेल नहीं मिला उन्हें, एटलीस्ट मोइन अली तो मिल गया ना. तो they were going for one or the other. At least they got one. तो they're probably happy कि मैक्सवेल के लिए उन्हें 14 करोड़ नहीं देने पड़े. They got someone almost as good with मोइन अली. Yeah, that's fine. I think कि आपने सही बात की, मोइन अली और मैक्सवेल तो ओके हो गया. बट आई मीन क्रिस मॉरिस का अगर आप कहते हैं कि डेथ ओवर्स में वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, बट हिज इंजरी कंसर्न्स आर टू मच. मतलब कि इट्स नॉट पॉसिबल कि वो पॉसिबल तो हो सकता है, बट वी सी दैट वो काफी ज्यादा इंजर्ड रहते हैं. और अगर ये मसला आ जाता है राजस्थान में तो ये राजस्थान के लिए बहुत बहुत ज्यादा बुरा साबित हो सकता है. बिल्कुल सही बात कर रहे हो यार आप, क्योंकि राजस्थान विल गो विद ए माइंडसेट. लेकिन क्रिस मॉरिस इंजरी प्रोन तो बहुत ज्यादा है यार. we even saw in the last season, right? Which was what 4 months ago. तो वो काफी ज्यादा इंजरी प्रोन है. But it's too much. I agree. I think 12 crore से ज्यादा होना नहीं चाहिए था for someone like Chris Morris. But while saying that, the reason why they kept going up and up and up, क्योंकि हर बंदे को चाहिए ना, वो इतना अच्छा प्लेयर है, ठीक है, he demands this type of money. So I'm
I'm not satisfied. I don't think it's justified completely, but I understand the reasoning behind it. तो इसलिए justification 12 करोड़ तक है, उससे आगे थोड़ा हेजी हो जाता है. क्रिस मॉरिस भी सोच रहे होंगे घर बैठे बैठे, मैंने 50 लाख से शुरू किया था, अब मेरी बेस प्राइस इतनी थी और मैं इतने का बिक गया. तो राजस्थान ने तो अपने सारे राजस्थान हैज पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. सो लेट्स सी क्या होता है. लेट्स होप कि राजस्थान के लिए अच्छी पिक साबित हो और क्रिस मॉरिस कैन डू वंडर्स फॉर राजस्थान वॉर. नाउ Yes. उसके अलावा आपको क्या लगता है अभी तक के ड्राफ्ट के बाद अभी तक जो हुआ है, कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा अच्छी तरह अपने पैसे यूटिलाइज किए? पैसे यूटिलाइज तो आई डोंट नो. आई थिंक मुंबई इंडियंस ने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से यूटिलाइज किए हैं, बिकॉज दे डोंट नीड दैट मेनी प्लेयर्स. उनके पास एक माइंडसेट है, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, दैट्स इट. Everyone else is still looking for multiple sources. वो एक पोटेंशियली एक बैट्समैन देख रहे हैं, पोटेंशियली एक ऑलराउंडर, एक बॉलर, सारे लोग ऐसे अभी घूम रहे हैं. मुंबई इंडियंस ने यार 9 प्लेयर्स ऑफ देयर्स आर अ श्योर शॉट फॉर द 11, तो उन्हें मुश्किल से यार एक प्लेयर चाहिए, क्योंकि बाकी वो किसी को भी लेके आ सकते हैं. दे हैव परफेक्ट रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी. तो द थिंग आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद मुंबई, इवन दो पहले बंदा सोच रहा था यार उन्होंने तो किसी को ज्यादा लोगों को रिलीज नहीं किया, लेकिन वोल्ड्रेनाइल को उन्होंने रिलीज किया था यार, उन्होंने पैटरसन को रिलीज किया था. दे हैड मेड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एंड नाउ दे आर एट अ पॉइंट वेयर आई थिंक मुंबई इंडियंस आर सेट यार. मुंबई इंडियंस को कुछ नहीं. अभी एक और प्लेयर मैं आपको नाम बता दूं, शाहरुख खान फ्रॉम he went for 5.25 crores. He's a domestic player. He's a batsman. अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है, उसमें he performed quite well. He didn't do brilliantly, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा है, हिटिंग पावर अच्छी है, एंड इज अ वेरी यंग प्रोस्पेक्ट, इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट. तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आईपीएल में यू कैन सी दीस प्लेयर्स गेट हायर बिड्स. मतलब शाहरुख खान यार, कम ऑन, आई ओनली हर्ड ऑफ हिम लाइक 2 months ago. मोहम्मद अजरुद्दीन जो नया वाला है, उसके लिए भी आई हैडंट हर्ड ऑफ देम about 2 months ago, and now they're getting that much cash. So I'm very impressed with some of the domestic choices that certain teams have made. लेकिन all in all, so far काफी मजा आया, काफी मजा आया. मैंने ऑक्शन कभी लाइव इतनी फोकस से नहीं देखी. आई हैव ऑलवेज जस्ट रेड इन द बैकग्राउंड, लेकिन आज देख रहा हूं तो इट्स अ लॉट ऑफ फन. ये सारा हो गया, बट अब आखिरी ऑप्शन का सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सारी पिक्स आपने देखी, इसमें से जो एक सबसे अच्छी पिक थी वो आपको कौन सी लगी, जो बेस्ट हो, जो मतलब कि प्राइस भी सारा कुछ मिला के प्लेयर वाइज भी बेस्ट पिक जो आपको लगी? Best in the sense for the team that got him is probably Dawood Malan. यार 1.5 crore से चला गया. Like, this guy is the best T20 player in the world right now, and he's gone for 1.5. काफी unsold हैं, which we'll get to, क्योंकि unsold वो वापस भी ले आते हैं ना एंड पे. तो let's not talk about that now. But in terms of जो players actually select हुए, Dawood Malan यार, and Steve Smith 2.2 or 2.5 something like that to Delhi Capitals. मतलब क्या खराब कर दिया यार स्टीव स्मिथ ने के. I was expecting that Smith को Maxwell से ज्यादा महंगा लिया जाएगा. Exactly, Maxwell तो यार 14, that's too much. But honestly, I'm those two have to be the picks. Yeah, they बहुत कम पैसों से they've been picked. But so that's good for those teams, definitely. Yeah, exactly. Now coming on to India versus England. सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि England versus India सेकंड टेस्ट में सिलेक्शन तो इंडिया ने बेहतर की फर्स्ट टेस्ट से, मतलब कि उसकी वजह से जीते इंडिया. यू कैन से दैट द मेजर फैक्टर. लेकिन उसके अलावा आपके कहते हैं वो क्या मेन चीज थी जिसकी वजह से इंडिया ने कमबैक किया? सिलेक्शन तो है, पिच भी है इन अ वे, लेकिन द बिगेस्ट थिंग फॉर मी वाज द वे आपने जो स्पिनर्स को देखा यार. अक्षर पटेल का डेब्यू था, ठीक है. अश्विन ने 8 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 7 विकेट लिए. कुलदीप यादव को यूटिलाइज नहीं किया तो ना करो, लेकिन उसने एंड में जाके कहा मुझे पूरे मैच में 12 ओवर मिले, लेकिन मैंने 2 विकेटें निकाल ली यहाँ से, ठीक है. दैट्स द टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट्स द टाइप ऑफ माइंडसेट ही हैज, एंड इट्स ग्रेट. तो मुझे स्पिनर्स की बात बहुत अच्छी लगी, द वे इंडिया हैव एक्चुअली यूटिलाइज्ड देयर स्पिनर्स इन दिस स्पेसिफिक मैच. अगेन बारिन कुलदीप यादव, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, और पिच हेल्पफुल थी ना, बाउंस भी हो रहा था, टर्न भी हो रहा था. एंड द थिंग इज the wickets weren't on sharp turners ज्यादातर विकेट थी जब बॉल वो अंडर कटर करा रहा था ना. अश्विन की एक पूरा उन्होंने विजुअल दिखाया था कि ऑफ स्पिन होती है तो बॉल थोड़ी सी ड्रिफ्ट होती है, इट स्पन अ बिट मोर. अंडर कटर इज मोर लाइक एन ऑफ कटर जो पेस बॉलर कराते हैं, ठीक है. अंडर कटर कराई है जो सीधी बॉल जा रही है और थोड़ी सी टर्न हो रही है, which causes the डिसेप्शन फॉर द बैट्समैन. क्योंकि यार 2-3 बॉलें अगर बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है
So they'll come back and they'll think, अच्छा एक और बहुत spin होगी, and they just hang their bat out. And I think the same thing happened to Ben Stokes. Hung his back out और उनके he got out. So definitely उनकी spin department was outstanding. Yeah. So अब आपको क्या लग रहा है कि जो इंडियन टीम है just setting a trend कि you know most teams in the world if they lose the first match उसके बाद उनका comeback करना हमें काफी मुश्किल लगता है. You know if you take the example from Australia, जैसे ऑस्ट्रेलिया से वो 36 को ऑल आउट हुए, then beating Australia in Australia, creating history, one of the best series wins in the history of Indian cricket. उसके बाद एक दफा फिर से नो डाउट इंग्लैंड थी, इंडिया में खेल रही थी, स्टिल एक मोराल आपको इंग्लैंड को एक एज था मोराल वाइज. यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार इंडिया की आप नोटिस करो ना, इंडिया एटलीस्ट 4 or 5 सीरीज नॉट इन अ रो बट इन द लास्ट like 4 or 5 years इंडिया हैज बाउंस्ड बैक व्हेनेवर they've lost. ठीक है, तो वही माइंडसेट इंडियन को रखना पड़ेगा. हमने देख लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. इंडिया वाज डाउन एंड आउट, दे केम बैक, दे वन. ऑस्ट्रेलिया couldn't step up in the next 2 games. ठीक है, अभी हमें पता चला है विल पेकॉव्स्की ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है, he's got a shoulder injury, he's getting reconstruction shoulder. ठीक है, उस एक प्लेयर की वजह से ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम थोड़ा कम हो गया because they can't find a second opener. England however are choosing players because of the rotational policy which I am completely with. हाँ, I complete. आवाज आ रही है? या इस पे भी मैंने बात भी करनी है आपसे. अच्छा, तो मैं जल्दी से बस वो कह देता हूँ. हाँ, रोटेशनल पॉलिसी, आई थिंक इंग्लैंड कैन बाउंस बैक एज लॉन्ग एज दे सेलेक्ट द राइट साइड. आप रोटेशनल पॉलिसी का क्वेश्चन पूछो. I mean रोटेशनल पॉलिसी पहले मुझे भी लगा अच्छी पॉलिसी है, यू नो, बट जिमी एंडरसन को रेस्ट देने का क्या मकसद है? उन्होंने तो ओडीआई और टी20 में खेलने हैं. ये एक तरह से काफी बुरी भी है रूट का. आपने इन जॉनी बेस्टो, यू नो, आपने स्टार्ट में उनको रेस्ट दे दिया. मैं इससे पूरा सेटिस्फाइड नहीं हूँ और काफी बड़े गैप्स हैं. आप देखें, परसों टेस्ट मैच खत्म हुआ, 4th को अगला टेस्ट मैच है, तो यू नो 4 more days, not even more than. So, yeah. मुझे यार एक चीज that I like about the rotational policy, मैं वो explain करता हूँ and then I'll tell you the wrong parts of it. So what I like is वो plan कर रहे हैं. They have 17 test matches this year. They have to plan हर player कितने matches खेलेगा. Yes, it's also based on T20, it's also based on ODI. लेकिन जेम्स एंडरसन जितना भी fit हो जाए, he is a 38-year-old man. Okay, I don't think he would have been as effective on this Chennai pitch at all जैसे वो पहले वाले में था. Yes, reverse swing कर लेता बॉल को, लेकिन this was a spinner's haven obviously. ठीक है, which is why I'm okay with the reasoning behind जेम्स एंडरसन को नहीं खिलाना. अब मसले ये आते हैं, उन्होंने पहले से प्लान आउट किया. मोइन अली का एग्जांपल ले लो. ठीक है, मोइन अली was supposed to play 4 test matches and then go back home. He played 1 क्योंकि पैंडेमिक और जो भी they didn't choose him in that first test क्योंकि बेस्ट को थोड़ा सा चांस देना था. अब he only got a chance to play that final test match, the second test, sorry. और उससे फिर कहा जा रहा है कि नहीं नहीं तुम रह लो. उसने यार पूरे प्लान्स बनाए होंगे. It would have changed his entire way they planned the entire tour and the entire जो पूरा साल किया है उन्होंने प्लान. तो ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन हर बंदे में आप देख लें यार, बटलर 3 हफ्ते के लिए 3 मैचेस के लिए मिसिंग होगा. इट मेक्स सेंस व्हाई दे हैव डन इट क्योंकि इतना ज्यादा क्रिकेट है. लेकिन दिस आल्सो टेल्स यू कि इंग्लैंड डोंट केयर अबाउट दिस सीरीज. उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में ज्यादा दे डोंट केयर दैट मच. दे केयर अबाउट T20 वर्ल्ड कप, दे केयर अबाउट द एशेस. ठीक है, व्हिच इज व्हाई आप नोटिस कर रहे हैं कि अभी न्यूज आई है, कल या परसों ही आई है कि इंग्लैंड आर अलाउइंग देयर T20 players to play in the IPL अगर उनकी टीम प्लेऑफ्स तक जाए. ठीक है, the reason is क्योंकि it's in India. I completely stand by it. It is in India, man. Come on. If the IPL is happening in India, World Cup is happening in India, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए अगर उनकी टीम प्लेऑफ्स तक गई, they definitely need to play. और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है. अब उसकी अगेन इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एशेज में रेस्ट कराएंगे जैसे वो इसमें रेस्ट करा रहे हैं. आपने देखा होगा एशेज में ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड आया था तो दे रेस्टेड मिचेल स्टार्क प्लेड 1 मैच इन द एशेज. ठीक है, इट वाज पैटिंसन, जॉश हेजलवुड और कमिंस ज्यादातर मैचेस खेल रहे थे अपार्ट फ्रॉम 1. तो आई थिंक दिस रोटेशनल पॉलिसी थिंग इज समथिंग दैट ऑस्ट्रेलिया began, but England are taking full advantage of it और मुझे लगता है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, एटलीस्ट एट द मोमेंट, मोइन अली के इस सिचुएशन को हटा के ऑब्वियसली.
हमें जो रूट पे तो नहीं कहना चाहिए था कि मोइन अली खुद ही जा रहे हैं, ये कहना तो गलत है ना जो रूट के लिए। तो यू जो नो मिस्टर सिल्वरवुड है ना, मिस्टर सिल्वरवुड, उन्होंने बाद में स्टेटमेंट की है अभी कल ही कि नहीं नहीं, वी डिडंट मीन इट लाइक दैट, लेकिन यार इट ऑब्वियसली सीम्स अ बिट व्हाट डू कॉल इट, नॉट डिरोगेटरी बट मोर डिसअपॉइंटिंग कि जब आप पढ़ते हैं कि बटलर का लिखा है कि बटलर जा रहा है क्योंकि एक्स वाई जेड, और मोइन अली ने चूज किया है कि मैं जा रहा हूं, तो दैट्स द डिफरेंस। लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट कुड बी मिसकंस्ट्रूड, बट एटलीस्ट दे क्लैरिफाइड इट। वो अच्छी बात है, उन्होंने एंड में जाके थोड़ी क्लैरिफिकेशन तो दी, वरना अदरवाइज इट वुड हैव बिकम अ बिगर डील देन इट ऑलरेडी हैज। या अब मैं आपसे थोड़ा सा फोर्थ टेस्ट मैच से क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद हम थर्ड टेस्ट मैच का पूरी तरह प्रीव्यू करेंगे। तो एक सवाल मैंने आपसे पूछा है कि हमने फोक्स की विकेट कीपिंग एबिलिटी देखी और साथ बैटिंग एबिलिटी। यू नो व्हेन जॉर्ज बटलर कम्स बैक इनटू स्क्वाड और जॉनी बेयरस्टो, तो आप तीनों को खिला सकेंगे या आपको आप फोक्स पे बिठा देंगे? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊंगा कि आई सी, आप चौथे टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं ना? या आई एग्जैक्टली। डोंट थिंक इज बटलर कमिंग बैक फॉर द फोर्थ? या आई हर्ड दैट। अच्छा, इफ ही इज कमिंग बैक फॉर द फोर्थ, अनफॉर्चुनेटली बेन फोक्स को ये बिठाएंगे। आई डोंट थिंक दे शुड। आई थिंक दे शुड गो इन विद बटलर एंड फोक्स, और बेयरस्टो को बिठाएं, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये उन्होंने सोचा है ना, अभी बेयरस्टो इज इन क्वारंटीन और समथिंग, ठीक है? तो व्हेन बेयरस्टो कम्स आउट, he will be ready for that third test match. He'll probably replace Dan Lawrence, ठीक है? या He'll come in at 3, he'll be there. अब डिपेंड करता है बेयरस्टो खेलता कैसे है। अब आपको अगला मैच देखना पड़ेगा, क्योंकि फोक्स कीपिंग माशाल्लाह, लाइक आई टेल यू व्हाट, इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग he is one of the best in the world. He's the best in England, हर बंदा ये कहता है, but he's one of the best in the world in terms of his wicket keeping abilities. अब बैटिंग भी काफी अच्छी है। Last time they toured India, he scored 100. अभी 42 बनाए थे, 42 not out. He was the only one standing on that pitch. ठीक है? तो आई थिंक बेन फोक्स को बैटिंग दिखानी पड़ेगी। अगर बेन फोक्स ने बैटिंग बेहतर की ना बेयरस्टो से, तो I see Butler coming back and Butler replacing Bairstow rather than Butler replacing Fox as the actual keeper. लेकिन more likely option, Fox को बिठाएंगे और Butler को लेके आएंगे। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड टेस्ट मैच के ऊपर। थर्ड टेस्ट मैच आपको क्या लग रहा है इंडिया क्या चेंजेस करने जा रहा है? इंडिया मोस्ट प्रोबेबली कुलदीप की जगह बुमराह को लेके आएंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। मे बी अगर शुभमन गिल का मैंने सुना है कि ही इज इंजर्ड या ही हर्ट हिमसेल्फ, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली दैट ही माइट बी इंजर्ड, तो मे बी इन प्लेस ऑफ हिम दे विल ब्रिंग मयंक अग्रवाल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ अग्रवाल दे माइट ब्रिंग इन केएल राहुल। तो इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ प्लेयर दे काइंड ऑफ लुकिंग फॉर इन दैट ओपनिंग स्लॉट। लेकिन अगर शुभमन गिल नहीं खेलता तो मोस्ट प्रोबेबली मयंक और केएल राहुल विल ओपन अप विद रोहित शर्मा, और बॉलिंग में तो I only see Kuldeep going out and Bumrah coming in. Even though I'm a huge Kuldeep fan, मुझे लगता है कि बुमराह को खिलाएंगे। बुमराह, सिराज and ईशांत शर्मा, pink ball day and night. You need 3 pacers there. Yeah. You need 3 paces and pink ball. That's the point. अगर अहमदाबाद की विकेट स्लो भी होती है तो pink ball actually gives a score to fast bowlers. तो इस पॉइंट पे क्या आप 4 फास्ट बॉलर्स खिलाना समझेंगे या आप 2 स्पिनर्स खिलाएंगे? Never in India. Never in India. मुझे आपकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है। इवन रावलपिंडी में जब खेल रहे हो और पूरी ग्रास भी हो, क्योंकि पाकिस्तान है ना, यू कांट प्ले 4 फास्ट बॉलर्स आउटराइट, ठीक है? क्योंकि इवेंचुअली स्पिनिंग विकेट बन जाएगी। अभी नहीं है तो बनेगी। आई एम टेलिंग यू, थर्ड डे के बाद स्पिन करना शुरू हो जाएगी, तो इट्स अ बेनिफिट टू हैव दोस स्पिनिंग ऑप्शंस। अब हार्दिक पांड्या का नाम फिर से आ रहा है, मे बी ही स्टार्टेड टू बॉल अगेन। इफ ही हैज, फिर वो टीम में किसी तरीके से आ जाएंगे। अब किसको निकाल के वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, बिकॉज आई डोंट नो इफ हार्दिक पांड्या इज फिट टू बॉल। अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली सी हिम इन द टेस्ट स्क्वाड यार। लेकिन इट्स गुड टू सी कि इंडिया हैज दैट बेंच स्ट्रेंथ को कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बुमराह, सिराज, ईशांत, उमेश यादव के नाम आ रहे हैं बिकॉज he was injured, now he's recovering. So maybe Umesh Yadav instead of Siraj, but I don't see Siraj having done anything wrong. लेकिन अगर इंडिया भी रोटेशन कर रहा है तो they'll bring in Umesh, they'll bring in Bumrah. But as of this moment, like I said, Siraj, Ishant, Bumrah, and Ashwin and Akshar Patel. Yeah, okay. उसके अलावा आपको क्या लगता है एक तो चेंज बनेगा इंडियन टीम में कि डैन लॉरेंस की जगह जॉनी बेयरस्टो will come in? Expect that any changes you see in?
In England side, Yeah. यार इंग्लैंड में like I said, more likely than not we're going to get Mr. James Anderson back, obviously. ठीक है, जेम्स एंडरसन आएगा, जितना भी मैं चाह लूं स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन को ये नहीं खिलाएंगे साथ, इवन दो दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट ओकेजन टू प्ले बोथ ऑफ देम टुगेदर. इन दोनों को खिलाएं. आर्चर अगर इंजर्ड है तो देन यू प्ले ऑली स्टोन, अदरवाइज यू हैव आर्चर और ये परफेक्ट इनकी बॉलिंग लाइनअप बन जाएगी. लेकिन मोर लाइकली देन नॉट they'll go for, अभी मुझे लगता है क्रिस वोक्स इज आल्सो इन इंग्लैंड, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड मार्क वुड इज आल्सो बैक. ठीक है, मार्क वुड वापस आ गए. तो अगर आर्चर इंजर्ड है और ऑली स्टोन को एक मैच दे दिया, दे माइट एक्चुअली ब्रिंग बैक मार्क वुड. आई डोंट थिंक दैट्स द वाइजेस्ट चॉइस, बट दैट्स एन ऑप्शन फॉर देम. आई सी जेम्स एंडरसन कमिंग बैक, ब्रॉड के रिप्लेसमेंट में आएंगे, क्योंकि दैट्स हाउ इंग्लैंड वर्क. और अगर ऑली स्टोन की जगह रही तो फिर ये एक और स्पिनर मोस्ट प्रोबब्ली, यार they'll have to go with two spinners. ये इंडिया है, they have to go with Bess and Leach. England can't afford, but on the other hand if you look at it, Joe Root has the golden arm, आके बॉलिंग करवा लेते हैं. ठीक है, but personally I think they'll have to go with a similar bowling lineup to what they've already had. So three pacers and two spinners. अब James Anderson, hopefully James Anderson comes in place or in place of Broad probably, and let's see how it goes. But हाँ, I think there's maximum two changes. Dan Lawrence, Bairstow और फिर वो एक और. मोइन अली तो obviously नहीं है ना, because Dom Bess comes in. Yeah. उसके अलावा अगर आप बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आपको कौन जाता हुआ नजर आ रहा है? That's the question. अगर मुझे ये जवाब पता होता, मैं तो यार हर चैनल पे जाता और बताता कि एग्जैक्टली होना क्या है. बट ऑनेस्टली यार इट्स वेरी टफ, क्योंकि आप देखो ना, इंडिया विंस द सीरीज, इंडिया गोज थ्रू. इंग्लैंड विंस द सीरीज 3-1, देन इंग्लैंड गेट थ्रू. अदरवाइज हर सिनारियो में ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. ठीक है, तो अगर आप ऑड्स को देखें तो ऑस्ट्रेलिया 50% चांस है ऑस्ट्रेलिया जाएगा, 33% चांस है इंडिया जाएगा, एंड 16% चांस है इंग्लैंड जाएगा. That mathematically speaking, I think India will. Personally, I think India will go through. India will win the series and they'll go through to the World Test Championship against New Zealand. I think कि जो अहमदाबाद का स्टेडियम है वहाँ से मैच 50-50 शुरू होगा. It's a new stadium, first match over there. तो वही टेस्ट मैच है, वो जो टीम जीत गई they have the chances arrive, और जो हार गई वो तो कंपटीशन से बाहर होगी. तो four teams are playing in a do or die situation from my point of view, और बल्कि ऐसा ही है. तो let's see क्या होता है. और आपके फाइनल थॉट्स के थर्ड टेस्ट मैच कौन जीतने जा रहा है? India. Yeah. Thank you very much for your time. I hope आपको मजा आया होगा. काफी मजा आया डिस्कशन करके. अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, वो भी अर्जुन भाई के साथ कर रहे हैं हम. So stay tuned for tomorrow as well.